Hello friends, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to teach you the concept of increasing, constant and diminishing cost industry under perfect competition. Let's get started guys. As you can see on your screen that I have already drawn two panels. One belongs to industry, one belongs to firm. Now, the original demand and original supply curve are intersecting each other at the equilibrium point E1, which leads to the equilibrium price P1 and the equilibrium quantity Q1. Now, that equilibrium price is actually followed by each and every firm in the market. And as you can see, हमने firm और industry, firm को जो price मिला P1 वो आगे firm ने follow किया है, that is the price P1. Now you must know this thing that over here in this market the AR is equals to MR. That's really very basic thing because the price remains constant. Fine. Now if I draw the LAC, long run average cost curve, SAC, the short run average cost curve, and the most important to achieve the equilibrium, that is SMC, that is the short run marginal cost curve. मैंने इन सब के आगे 1 लगाया है which is representing the long run average cost curve LAC, SMC and SAC in the first period of time. Fine. So in this particular period, as you can see that the firm has achieved the equilibrium and the firm is earning normal profit. कैसे पता लगा कि normal profit यहाँ पर earn हो रहा है? क्योंकि इस particular level of output पर, that's Q1 again, इस particular level of output पर आपका MR और MC आपस में equal है, which is a very basic condition to achieve the equilibrium, that is MR must be equals to MC. और इसी point पर आपका अगर AC भी equal हो जाए, this simply means that the firm is making zero profit, or you can say the state of normal profit. Fine. So यहाँ पर वो achieve किया जा रहा है. मैं इस केस को आगे एक्सटेंड करता हूं that suppose that because of some reason the market demand, the market demand increases. market demand जैसी बढ़ेगी तो जो आपका market demand curve है, the demand curve will shift towards right. राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. जैसे ही वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, यू विल गेट अ न्यू डिमांड कर्व. आपको एक नया डिमांड कर्व मिल गया और इस नए डिमांड कर्व पर आपको मिलेगा नया इक्विलिब्रियम प्राइस. लेट्स नेम दिस एज इक्विलिब्रियम प्राइस एज E2 और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपको देगा नया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको देगा नया इक्विलिब्रियम प्राइस. लेट्स नेम दिस एज P2. व्हाट? P2. अच्छा, ये P2 प्राइस अगर मैंने फर्म को आगे फॉरवर्ड किया P2. अच्छा, इस P2 प्राइस पर फर्म को क्या चीज देखने को मिलेगी? जस्ट बी क्विक गाइस. मैं अपने SMC को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करूं, दैट्स माय शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. इस शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के साथ गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि ये जो आपको नया ARMR अचीव हुआ है, मैंने पुराने वाले को नाम दिया ARMR1, इसको मैं नाम दे रहा हूं ARMR2. सो AR2 इज इक्वल्स टू MR2. फाइन. अब इस वाले अगर आप सिनेरियो में नोटिस करें तो आप इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं और इतने प्राइस पर जो आपकी कॉस्ट है, दैट इज दिस. लेट्स नेम दीज टू पॉइंट एज B एंड पॉइंट C. तो यानी कि प्राइस B जितना और कॉस्ट C जितनी. दिस सिंपली मींस दैट एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 the existing firms in the market are earning abnormal profit. What? Abnormal profit. And as you know that if the firms are making abnormal profit, so that would leads to what? The entry of new firms in the market. इसकी वजह से market में नई entries होनी start होंगी, entries of new firm. अब नई फर्म्स मार्केट में आ रही हैं तो वो आके प्रोडक्शन करेंगी. अब जब वो प्रोडक्शन करेगी तो आपकी सप्लाई का लेवल भी तो बढ़ेगा. मींस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स द सप्लाई ऑफ द मार्केट विल इंक्रीज. अब जैसे ही आपकी मार्केट की सप्लाई इंक्रीज हुई, आपको एक नया इक्विलिब्रियम देखने को मिला. इस इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया मैंने E3, जहां पर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से Q2.
अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आपका प्राइस है वो मैंने दिया लेट्स से P3, और ये P3 प्राइस जब आपने आगे फॉरवर्ड किया किसमें, अपनी फर्म्स में, तो इस नए प्राइस पर देखते हैं क्या होगा। गाइस यहां पर क्योंकि हम जो केस लेके चल रहे हैं दैट इज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कि मार्केट में जो नई फर्म्स आ रही हैं उनकी वजह से प्रोडक्शन का लेवल तो बढ़ा, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ी तो साथ साथ कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनपुट्स की एकदम से डिमांड बढ़ गई है। जब इनपुट्स की एकदम से डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपके इनपुट्स का प्राइस भी यहां पर बढ़ रहा है, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। मे बी आपके उस रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो, मे बी आप टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस ना यूज कर रहे हो, एंड एक्सेट्रा। सो देयर कैन बी एनी रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग कॉस्ट, बट यहां पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है जस्ट बिकॉज कि आपका इनपुट महंगा मिल रहा है। फाइन, तो आपको नया इक्विलिब्रियम प्राइस P3 अचीव हुआ था विद द न्यू इक्विलिब्रियम E3, तो P3 मैंने आगे फर्म को फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि इस नए P3 पर आपकी जो कॉस्ट है वो हायर है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया LAC2, यहां पर आपका SAC2 भी इसके साथ टेंजेंट होगा, एंड देन दैट इज SMC2. Now this is also the state of equilibrium. Why it is the state of equilibrium? Again क्योंकि यहां पर जो आपका AR है यानी कि प्राइस, MR, MC, AC सब एक दूसरे के इक्वल है। That MR is equals to MC is equals to AC, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। So चलिए ये बात हमने देखी कि हमारी यहां पर कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, हमारे डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों किया, सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों किया, बट वेयर इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। व्हाट? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। when you join the original equilibrium with the latest equilibrium, you got the long run supply curve, and that is the long run supply curve of an increasing कॉस्ट इंडस्ट्री। ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगा एक इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का। फाइन, अब मैं आता हूं जल्दी से लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। व्हाट? कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कैसी होती है गाइस? जिसके अंदर लॉन्ग रन में भी कॉस्ट का लेवल कांस्टेंट रहता है। लेट्स सपोज मैं यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज करके दिखाने वाला हूं। मैंने यहां पर बना दिया LAC कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मैंने फिर से यहां पर एक ड्रॉ किया SAC कर्व, दैट इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और मैंने यहां पर एक ड्रॉ किया SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। नाउ लेट्स टेक अ केस। पहले वाले केस में भी गाइस हमने डिमांड इंक्रीज करी थी, पहले वाले केस में भी हमने डिमांड इंक्रीज करी थी, मार्केट डिमांड बढ़ी थी जिसकी वजह से डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था। मैं यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज करता हूं। क्या? सपोज मार्केट डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई, जैसे ही आपकी मार्केट डिमांड इंक्रीज करेगी, जैसे ही आपकी मार्केट डिमांड इंक्रीज करेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट द डिमांड कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, यू गॉट द न्यू इक्विलिब्रियम। अब ये नया इक्विलिब्रियम आपको नया इक्विलिब्रियम प्राइस देगा, लेट्स से P2, इक्विलिब्रियम का नाम E2। अब यही P2 प्राइस आगे फर्दर दिया जाएगा फर्म्स को। अब इस P2 प्राइस के ऊपर ध्यान से इस चीज को देखिएगा गाइस, इस P2 प्राइस पर दैट इज द प्राइस विच दे आर चार्जिंग एंड द कॉस्ट इज दिस। अगेन वही, B is the price which they are charging and C is the level of cost. This simply means that at this price P2, each and every firm is making abnormal profit. Now again the same scenario जो आपने ऊपर देखा कि abnormal profit बाहर वाली फर्म्स को अट्रैक्ट करता है, नई फर्म्स मार्केट में यहां पर एंट्री लेना स्टार्ट करेगी। बट वी आर एज्यूमिंग दिस थिंग ओवर हियर कि मार्केट के अंदर जो भी फर्म्स आती हैं, यानी कि जो नई एंट्रीज होती हैं, उनकी वजह से इनपुट के प्राइस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। दिस सिंपली मींस कि उनके आने की वजह से जो कॉस्ट है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। दिस सिंपली मींस जितने से डिमांड बढ़ी उन्होंने उतने से ही सप्लाई बढ़ा दी। जब उन्होंने उतने से ही सप्लाई इंक्रीज करी
तो जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो उतने का उतना रहेगा और सप्लाई आपकी इंक्रीज कर जाएगी. So S1, so you got the new equilibrium price E3, and at this equilibrium price E3 you achieved the higher quantity. What? You achieved the higher quantity but the cost remains same. You are still lying at this point only, which was the original point. Fine. So that is the case of the constant cost industry, and at the end इस केस में आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा देखने को मिलेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो दैट इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. फाइन. सो दैट इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. अब आते हैं हम जल्दी से लास्ट वाले केस पे, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री. अब ये डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होती है? जिसके अंदर गाइस लॉन्ग रन में आपको कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिरती हुई दिखाई दे. लेट्स टेक द केस. सपोज द इकोनॉमी, सॉरी द इंडस्ट्री इज ओरिजिनली एट इक्विलिब्रियम एट E1. फाइन. अब इस E1 पॉइंट पर जो आपको यहां पर कॉस्ट देखने को मिल रही है, दैट कॉस्ट इज बेसिकली दिस लेवल. सो दैट्स योर LAC. लेट्स नेम दिस इज LAC1. फाइन. That's SAC, that's SAC1, और यहां पर आपका वही SMC इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. So this simply means that this point is the equilibrium point at which again everybody is just earning normal profit. Again जैसा हम सबसे पहले वाले केस में करा था हमने कि मार्केट डिमांड को हम इंक्रीज करेंगे. जब हमने मार्केट डिमांड को इंक्रीज किया तो अगेन डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. यहां पे भी मैं बिल्कुल सेम चीज कर रहा हूं गाइस. तो मैंने अपना डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया. फाइन. ये हमने अपना डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया गाइस. जैसे ही मैंने डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया तो अगेन क्या नया इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. नए इक्विलिब्रियम के साथ हायर प्राइस मिला. लेट्स नेम दिस एज P2. पुराने वाले का नाम मैंने P1 दे दिया गाइस. अब इस P2 प्राइस पे अगेन जैसा आपने तीनों केसेस में नोटिस किया that at this price P2 each and every firm will earn abnormal profit. Abnormal profit यहां पर again that is the price which we are charging and that is the cost level. तो यानी कि that's the point B, that's the point C. B is the price which you are charging, C is the cost which you are bearing. So this BC is what? The abnormal profit. And you know this thing very well that this abnormal profit will attract the outsiders. अब जैसे ही आउटसाइडर्स आपकी मार्केट में एंट्री करेंगे तो क्या होगा? सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. अब जैसे ही आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करा तो आपको यहां पर कुछ अलग देखने को मिलेगा. आपको नया सप्लाई कर्व मिला. नए सप्लाई कर्व पर आपको नया इक्विलिब्रियम मिला और जो आपका मार्केट का प्राइस है वो लोअर है. मार्केट का प्राइस जब लोअर है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि फर्म के पास प्राइस काफी लो पहुंच रहा है. P3. फाइन. अब इस P3 प्राइस पर दैट इज योर LAC, LAC1, दैट इज योर SAC, दैट इज SAC1, और इस sorry for this guys, that is LAC2, SAC2, and that is SMC2. फाइन. वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट गाइस, अगेन at which everybody is making the normal profit. Now where is the long run supply curve? Again simply just by joining the original equilibrium and the latest equilibrium you got a downward sloping what? LRS. This LRS is what? The long run supply curve of decreasing cost industry. Decreasing cost industry. Fine. So this was the case of increasing, constant and diminishing cost industry and the concept of long run supply curve in the perfect competition. Thank you so much guys. This is Utkarsh Bhargav.